So guys, in the previous session we have covered like what is exception, okay, and what is exception family classes, means like what is the exception hierarchy, okay, and checked exception, unchecked exception, error, okay, and try block, catch block, finally block, okay, and throws keyword. So guys, these all things guys we have covered. So I will repeat again. You can go through my previous session, but I will repeat in short only. Okay. So what is exception, guys? So exception, guys, you can say it's kind of error which can be handled programmatically. So the error has been identified, and programmer is able to handle that error. And if programmer is able to handle that error, we can prevent the abnormal termination of the program. Okay. So exception, if it is identified, must be handled by the programmer. Okay. So programmer can provide the solution or some meaningful messages to the client. Okay. So they can correct their problem. And even in case of exception handling, even we are getting the error at the time of execution, at the time of runtime, but my program execution will be continued. My program will not terminate abnormally. Okay, so actually we are preventing the, you can say, abnormal termination, and you can say, you can say we have a like unexpected error, you can say. Okay, we are trying to write the code, and at the time of executing the code, if any exception raised, any unexpected error raised, so that if it is been identified, that must be handled by the programmer. Okay. So if it is not identified, it becomes a, you can say, system error, you can say. So we have a system error, means which cannot be handled by the programmer programmatically. Programmer cannot do anything. Okay. Or in case of error, error cannot be handled by the programmer. Belong to the like system specific error, like out of memory error, stack overflow error, virtual machine error. Okay. But if error is identified, and uh, if error is identified, and uh, if it is logical error, and that logical error can be handled by the programmer. Okay, programmatically. So by handling, we can avoid the abnormal termination. Okay, and my program execution will be continued I I will be getting the runtime error. So family classes you can go through, guys, in my previous session. Check the exception. You can say compiler is checking at compilation time and not allowing these error, not allowing these exception at runtime. You can say it must be handled or specified by throws keyword. Okay, so compiler is forcing to programmer, please handle it or specify with throws keyword. You can say. So these checked exception belong to the application specific error. So application specific means it's
not belong to the Java application. All error not belong to the Java application. It's coming from outside the Java application. Remember, this is very important concept. It's very interview. So you can say it's interview question. Okay, what is the checked exception? What is the unchecked? How you can differentiate? So application specific, as I told you, it is application specific error coming from outside the Java application, like input output IUX exception. So when you perform the input output operation, at the time we might get the IU exception, we might get the input output error belong to the IU exception while getting the database connection. While connecting to the database, we might get the database connection issue. That error belong to the SQL exception. That error is coming from the outside the Java application. You can say database application. Okay, so this is all error belong to the application specific application error. Okay, and that's why programmer, that's why compiler saying please handle it or specify with throws keyword. So if someone calling to your method and if exception is already specified in the method, so invoker will be prepared for the specified exception. Okay. Now unchecked exception are those exceptions which are not forced by the compiler either to be properly called or specified with throws keyword. So here आप कह सकते हो कि वो कंपाइलर आपको फोर्स नहीं कर रहा है, इट्स अलोइंग एट रन टाइम आप हैंडल करो. यू कैन गिव सम कस्टमाइज्ड मैसेज, मीनिंगफुल मैसेज टू द क्लाइंट, टू द यूजर. इफ यू डू नॉट हैंडल, GRE will handle it. But compiler is not forcing to handle or specify with those keywords. ठीक है, एक तरह का ऐसा है कि जैसे चेक एक्सेप्शन के केस में अगर आपके मेथड के अंदर से कोई चेक एक्सेप्शन रेज हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू रेज द any checked exception, IO, SQL exception, okay, interrupted exception, fine, interrupted exception you can say. तो आपको वही बताना पड़ेगा मेथड के बाहर या तो सिग्नेचर मेथड सिग्नेचर में लिखना पड़ेगा थ्रोस कीवर्ड के द्वारा ये एक्सेप्शन रेज कर सकता है ये मेथड फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. तो जो भी आपके मेथड को कॉल करेगा ही विल बी रेडी, ही विल बी प्रिपेयर कि भाई आपका मेथड से ये चेक एक्सेप्शन आ रहे हैं, वो प्रिपेयर रहेगा उनको हैंडल करने के लिए, उनको अपने हिसाब से वो मैनेज करेगा, हैंडल करेगा. ठीक है, अगर वो हैंडल नहीं करेगा दैट्स देयर प्रॉब्लम. तो यहाँ पर कंपाइलर फोर्स कर रहा है. सेम थिंग लाइक आपके घर में एक खतरनाक कुत्ता है, अगर आपने बीवर ऑफ डॉग लिखा है इट्स ओके. समवन कमिंग विदाउट सीइंग दिस नोटिस बोर्ड, समवन इज एंटरिंग इनटू योर हाउस without seeing the notice board, if dog is attacked, then you won't be responsible. You can say that, see, you can see to anyone in the society, I have already mentioned in the notice board. Why you did not see this notice board? Why you have not informed me without, before coming? You should have informed me before coming. Because I already mentioned that beware of dog. So you can say it's same like throws keyword. Like see, बता दिया आई थिंक इसकी वजह से. अगर आपका ये मेथड चेक एक्सेप्शन थ्रोस कर रहा है तो यहाँ पर आपको थ्रोस कीवर्ड के थ्रू एक्सेप्शन लिस्ट मेंशन करना पड़ेगा. जिससे जो भी इस मेथड को कॉल करेगा, अभी मैन मेथड को पब्लिसिटी को GRE कॉल करता है तो GRE विल प्रिपेयर टू हैंडल दिस एक्सेप्शन आई एक्सेप्शन अगर इसके अंदर से आई एक्सेप्शन रेज होता है. ठीक है, अगर आप नहीं लिखते हो तो आई एक्सेप्शन रेज होता है तो क्या होगा भाई, फिर ये क्या होगा, ये है अब आई एक्सेप्शन अगर रेज होता है ठीक है, अगर आप नहीं करोगे, नहीं करना चाहते, नोटिस बोर्ड पे नहीं देना चाहते हो, तो वो कहेगा क्या करेगा भाई, so then
अगर आपका कोई खतरनाक कुत्ता है, आप नोटिस बोर्ड पे नहीं डालना चाहते बिहेवियर ऑफ डॉग, तो आप घर में उसको एक बंद कमरे के अंदर 15 दिन के लिए, कोई इशू नहीं, आप हैंडल कर रहे हैं उसको, कोई भी आएगा कोई इशू, सिचुएशन विल बी अंडर द कंट्रोल। ठीक है, तो आइदर हैंडल इट और स्पेसिफिक थ्रोस की हैंडल इट मतलब ट्राई कैच ब्लॉक। लेकिन अगर नहीं करोगे ट्राई कैच के ब्लॉक के लिए, तो भाई इसमें क्या होगा बताइए, फिर आपको यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आएगा, जो मैंने बताया था आपको प्रोग्राम में। ठीक है, ये देखिए हैंडल किया नहीं करोगे तो ट्राई कैच बट आई एकदम सपोज यहाँ से क्या कहेगा देखो, व्हाट कंपाइलर्स अनदर एक्सेप्शन, क्या कह रहा है देखो, ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर और इसको हैंडल करो। ठीक है, तो ये मान के चलो ये आपका घर है मेथड, इसके अंदर आपने चेक एक्सेप्शन है, आप ना तो हैंडल कर रहे हो ना स्पेसिफाई करो, तो कंपाइलर लॉग हो जाएगा। मैंडेटरी है भाई, घर में आपने शेर पाल रखा है और आप बोर्ड पे लिख रहे हो, और ना आप उसको घर में कहीं पिंजरे में बंद करके रख रहे हो, तो इस केस में कंपाइलर अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब जो वो एक्सेप्शन होते हैं जैसे int d टू 20 डिवाइड बाई 0, देखो यहाँ से जो एक्सेप्शन रेस हो रहा है वो अनचेक एक्सेप्शन रेस हो रहा है इस स्टेटमेंट, तो यहाँ पर कंपाइलर में फोर्स नहीं कर रहे कि आप हैंडल करो और कंपाइलर ये कह रहा है यहाँ पर कि ओके भाई अनचेक एक्सेप्शन कैन वी हैंडल एट रन टाइम, मतलब एक तरह का ऐसा मान लो कि अब इस मेथड के अंदर कोई खतरनाक कुत्ता नहीं, अब इस मेथड के अंदर एक सिंपल सा कुत्ता है, जो कुत्ता नहीं पप्पी मान लो उसको, छोटा सा। ठीक है, कुत्ता तो है लेकिन वो लोगों को देख के भग जाता है, एक ऐसा कुत्ता जो लोगों को देख के भग जाता है, इसलिए उसके जो मेथड का ओनर है, जो मेथड बना रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है कि यहाँ से जो है एक्सेप्शन अनचेक एक्सेप्शन है, तो ये आपका इसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी आर ई नो हाउ टू हैंडल इट और अन टाइम पर हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा कुत्ता है जो लोगों को देख के भग जाता है, आप उसको हैंडल करो ना करो घर के अंदर, पिंजरे में रखो ना रखो, घर के अंदर घूमने दो, घंटी बजेगी ऑटोमेटिक भग जाएगा। ठीक है, तो ये तो घर के अंदर की बात हो, घर के बाहर की बात हो गई, आप उसको यहाँ पर स्पेसिफाई करो कि ये चारों, सपोज कौन सा एक्सेप्शन है ये आपका, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, अब वो ये, अब आपने कुत्ता तो है ऐसा कि भाई वो लोगों को देख के भग जाता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, नोटिस बोर्ड घर के बाहर लगा रहे हो बिहेवियर ऑफ डॉग, भाई मैं तो बिल्कुल उसके घर में जाऊंगा, बिहेवियर ऑफ डॉग लिखा है तो कोई सावधानी दिलाऊंगा, लेकिन जब ये घंटी बजाऊंगा कुत्ता भग जाएगा, या मैं जब देखने जाऊंगा कुत्ता देख के भग जाएगा, तो आई विल प्रिपेयर, बट घर वाले को टेंशन नहीं थी, कुत्ता के मालिक को टेंशन नहीं थी, भाई कुत्ता है वो काटते नहीं है किसी को, भग जाता है, तो बाहर लिखे, घर में अंदर हैंडल करे ना करे उसको कोई इशू नहीं है, ये इसकी सुध पार्टी है, तो सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल। ठीक है, ओके फाइन, मेरा भी हमने डिस्प्ले कर डिस्कस कर लिया, ट्राई ब्लॉक हो गया, कैच ब्लॉक हो गया, फाइनली हो गया, ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर प्रोन स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, और वो एरर प्रोन स्टेटमेंट कैच के अंदर हैंडल होंगे, तो अलग अलग कैच, अलग अलग एक्सेप्शन के लिए अलग अलग कैच ब्लॉक लिखेंगे अपन। ठीक है, और वो कैच ब्लॉक अगर वहाँ हैंडल नहीं होता है, पर्टिकुलर एक्सेप्शन स्पेसिफाई नहीं है कि ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शन रेस हो रहा है रन टाइम पर, तो उसका उसके सुपर वाले एक्सेप्शन पर जाएगा, कैच ब्लॉक के कैच ब्लॉक देखेगा सुपर एक्सेप्शन, सुपर क्लास के एक्सेप्शन वहाँ हैंडल होगा। अगर सुपर क्लास का एक्सेप्शन भी नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी उसको मैप नहीं कर रहा है कैच ब्लॉक, ऐसा कोई कैच ब्लॉक नहीं है जो उस एक्सेप्शन को मैप कर रहा है,
फिर वही वो GRE हैंडल करेगा, ध्यान रखना। GRE प्रोवाइड द that error, that that error message it won't be the user friendly, ठीक है। user friendly user throw, आप थ्रो कीवर्ड देखिए गाइस, एक बार मैं रन करता हूँ यहाँ पर सिस्टम आउट फिल्टर है, यहाँ मैंने लिख दिया और यहाँ पर कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, कंपाइलर फोर्स नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनचेक एक्सेप्शन हो रहा है, एक्सेप्शन पर अनचेक एक्सेप्शन, एरर प्रोन स्टेटमेंट पर अनचेक है। सेम थिंग बिहेवियर ऑफ डॉग, कुत्ता ऐसा है कि वो लोगों को देख के भाग जाता है, तो डजंट मैटर, मैंने तो बना के ऊपर पढ़ के रहा, ओके ठीक है। एक्सेप्शन आ रहा है, जैसे बनाया, इसके बाद जैसे एक्सेप्शन आता है यहाँ पर एरर आया है, आपने हैंडल नहीं किया तो टर्मिनेट हो जाएगा, इंटरप्शन आ जाएगा, अदर स्टेटमेंट वोंट गेट एग्जीक्यूट, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट आएंगे, आप यहाँ जितने भी स्टेटमेंट लिखोगे कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्सेप्शन रेज्ड एंड नॉट हैंडल्ड, माय प्रोग्राम विल गेट विद एनऑफ। अगर आप चाहते हो इसको ना हो तो ट्राई कीजिए इसको, ठीक है, ट्राई और कैच ये आ गया, मेरा एच गिटहब AI मैंने कॉन्फ़िगर किया है AI, इसलिए यहाँ पर वो इसको मैं हटा दूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम कंट्रोल जेड लिखता हूँ, जेड इज डी ना करते हुए, अच्छा यहाँ पर डी में इधर कैपिटल डी इक्वल टू 0, डी वेरिएबल यहाँ पर तो अभी अगर एक्सेप्शन आएगा तब भी रिजल्ट डी 0 आ जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन के साथ भी मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, ऑफकोर्स भी आने लगना चाहिए, मैं यहाँ लिखूँगा अभी आज मैं मैंने तो एग्जीक्यूट ये गलत है ना, तो इसको मैं यहाँ क्या करूँगा, इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ सिस्टम पेंडिंग प्रोग्राम, एक्सेप्शन भी आया, एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं हुआ, अगर आप यहाँ पर ट्रू कर दिया तो देखो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, कैच वाला कोई एक्सेप्शन नहीं आया है, यहाँ से आके फिर ये वाला चल जाएगा, तो अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो ये चलेगा, ये भी चलेगा और ये नहीं चलेगा, कैच वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आया, ठीक है, और फिर ये वाला चलेगा, एक्सेप्शन आया अगर यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से सीधा आया, जैसे मैंने जीरो करके डी वन जो यहाँ पे मैंने जीरो किया, तो फिर ये वाला नहीं चलेगा, रिजल्ट वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, यहाँ से ही थ्रो होके ओके यहाँ पर एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हो जाएगा, जेड आइडेंटिफाई एक्सेप्शन है थ्रो, यहाँ पर कैच हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, यहाँ आके यहाँ, ठीक है, सॉरी फिर मैं रन टाइम एक्सेप्शन आपको बता देता हूँ, ये रन टाइम ही एक्सेप्शन अगर मैं ये वाला फाइल नहीं चला, ये वाला फाइल नहीं चला, यहाँ से एक्सेप्शन रेज हुआ, ये आया, थ्रो हुआ, ये आ गया, और यहाँ पे भी चला,
अब मैं बात करता हूँ। तो ये गाइस रन टाइम एक्सेप्शन था मेरे, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या था अपना। सो आई विल लाइक check create now exception and throw keyword. I will use the throw keyword also. But first I will create the runtime exception, then I will go for check exception. तो कस्टमाइज एक्सेप्शन गाइस मुझे करना है जैसे इलीगल आर्गूमेंट इनवैलिड ओके। जैसे मैं कर सकता हूँ यहाँ पे मैं थ्रो कीवर्ड का यूज़ करता हूँ। ओके जैसे मैं इनपुट ले रहा हूँ जैसे इंट डी सॉरी जैसे इंट रिजल्ट ले लिया मैंने यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू जीरो। नाउ इंट ए इक्वल टू 90 इंट बी इक्वल टू 9। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ रिजल्ट ए यहाँ पर मैंने किया बी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर रिजल्ट इज रिजल्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं अपन प्रॉपर मैं कर पाऊँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इस अभी तो मैंने ये किया, ठीक है। लेकिन बिफोर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन व्हाट आई विल डू I will check if b equal to 0 then through new illegal argument exception। ये देखो illegal argument exception आ गया। मैं यहाँ पर थ्रो करूँगा डिवाइडर नॉट भी जीरो, ये कर दिया मैंने, ठीक है। ध्यान रखना इक्वल टू जीरो मतलब इसको see in this way guys we can throw keyword is used to throw the exception explicitly, throw the user defined exception explicitly or throw the predefined exception explicitly with customized message के द्वारा customized message, ठीक है। तो हम एक्सप्लिसिटली अपने एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। पहले इम्प्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो हो रहा था अगर हम नहीं करते, जैसे ए डिवाइड बाई बी, बी अगर जीरो है तो वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन इम्प्लिसिटली थ्रो करता है, ठीक है। यानी throwing the implicitly, but यहाँ पर programmer can check the input and based on the input they can throw the exception explicitly and that exception you can handle it, ठीक है। जब डिवाइडर कैन नॉट बी जीरो। अब ये लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आया तो आपको इसमें क्या करना है, यू हैव टू हैंडल इट। यहाँ पर एक बनाओ कैच के द्वारा एक और कैच, ये आ गया लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन कर दिया। ये देखो रन टाइम एक्सेप्शन आ गया। चाहो तो यहाँ मैसेज आप दे सकते हो, कौन सा मैसेज, ये कर दिया देखो आर्गुमेंट एक्सेप्शन ई डॉट गेट मैसेज, जो मैसेज मैंने डाला वो आ जाएगा, divisor cannot be zero, okay, got it। So in this way guys you can check any input and you can throw the customized exception or user defined predefined exception also। So let's see result is zero, कोई इशू नहीं है, b input जीरो नहीं है, ठीक है। लेकिन
अगर आपने यहाँ पर बी इनपुट जीरो कर दिया, अभी तो मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, यू कैन टेक फ्रॉम क्लाइंट आल्सो, और आप एट रन टाइम पर भी ले सकते हो। ठीक है, अभी देखो आया ना लीगल जीरो है ना, ये आप so the keyword is used to throw the exception explicitly, define exception or customer exception। ठीक है, अब guys in this way you can throw any number of exception। ठीक है, जहाँ जहाँ आप कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक कर लो इनपुट को, और जो जो एक्सेप्शन आपको थ्रो करना है आप थ्रो कर सकते हैं, और उनको आप कॉड भी कैच भी कर सकते हो अपना, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया। सपोज अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, जो मैसेज आपने डाला है वो आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पर ये कैच नहीं किया, ये वाला इलीगल वाला नहीं किया, अभी कौन सा वाला आएगा, नहीं मिलेगा मैच यहाँ पर वो, तो ये एफ जी आर ई हैंडल करेगा अपने हिसाब से, वो जी आर ई दिखाएगा। ये वाला है भी, है देखो कौन सा, लेट्स सी कुछ आ गया, क्या कह रहा है, बिल का इशू आ गया। हाँ, ये मान लो एरर है, तो मैंने लिख दिया, देखो आया इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन तो आ गया। यहाँ से मैं थ्रो कर रहा हूँ बी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इलीगल आर्गूमेंट इस समय हमें थ्रो कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली, अगर नहीं लिखते तो जीआरई थ्रो करता। ठीक है, लेकिन जीआरई ये वाला नहीं थ्रो करता, जीआरई अर्थमेटिक वाला कर देते हैं यहाँ पे, आप अर्थमेटिक को भी एक्सेस थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन कैन नॉट बी जीरो, क्यों से यहाँ पर आ रहा है, आप अगर हैंडल कर दोगे तो उसके साथ में जो और मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हो आप, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, फाइन। Otherwise, I will try to create the, you can say runtime exception। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है runtime exception। illegal argument exception division cannot be zero, ही आ जाएगा मैसेज जो आपने डाला। ठीक है, now I will try to create the, you can say invalid input। that way you can create any number of exception। ठीक है, I will create now G class now input, sorry invalid, invalid input exception, ये अपन बनाना है। ठीक है, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन हमें रन टाइम एक्सेप्शन के थ्रू बनाओगे तो वो अनचेक एक्सेप्शन होंगे, एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, एम एस जी कर दो इसको कंस्ट्रक्टर, मैसेज है ये हो गया भैया आपका। अब देखो आप इसको थ्रो कर सकते हो, इन दिस वे गाइस यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी क्लास के अंदर, सॉरी देखता हूँ कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करना है। लीगल आर्गूमेंट ये मेरा होगा, इंस्टेड ऑफ लीगल आर्गूमेंट व्हाट आई विल डू, आई विल गिव इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन। इनपुट एक्सेप्शन
तो कोई हैंडल हो नहीं रहा है, जब नहीं हो रहा है तो जीआरई करेगा हैंडल, जीआरई करेगा तो जीआरई थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, लेट्स से देखो देख लेते हैं। कोई कोई कस्टमाइज वैसे दीजिए, वो क्या आ गया, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन आ गया, डिवीजन कैन नॉट बी जीरो ही आ गया, वो जीआरई ने किया, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है। तो अभी हमने कैच किया नहीं है, तो यहाँ पे मैं one more exception I will write here, ये ही आ गया। मैं दो तरह के एक्सेप्शन इलीगल हो गया, ठीक है। अब अगर कोई नेगेटिव है, इसको डालते हैं अपन इलीगल आर्गूमेंट, इलीगल आर्गूमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा चेक करेंगे अपन, इफ ए लेस देन जीरो और बी लेस देन जीरो, देन थ्रो इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, अब यहाँ पर न्यूमेरिक कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। ये देखते हैं अपन क्या कह रहा है वो, अच्छा करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। ये देखो एनी नंबर ऑफ, ये लीगल आर्गूमेंट अपना है, क्योंकि किया मैंने, ये डिफाइन है, ये अपन ने डिफाइन। अब आप और भी बना सकते हो, अब जैसे इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रन टाइम एक्सेप्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिक कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अब देखना, अब मैंने अगर नेगेटिव दिया, जैसे मान लीजिए पर अगर एक्सेप्शन यहाँ रेज हो गया तो वहाँ से चले जाएगा, चलो बी यहाँ पर राइट है, 9 है, ये मिला माइनस है, देखो क्या दे देगा ये, कौन सा, ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, न्यूमेरिक कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके, नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, सब कुछ सही है तो चल जाएगा, तो कुछ नहीं है, रिजल्ट इज जीरो, रिजल्ट इज 10, और यहाँ पर सीधा एंडिंग कर रहा है, तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एब्नॉर्मल परमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये है, अब मैं अपना एक और एक्सेप्शन बनाऊंगा, जो मेरे एक्सेप्शन पर चेक एक्सेप्शन बनाऊंगा, जैसे मैंने बनाया, एक एक्सेप्शन बना सकते हैं अपन, यूजर नॉट एक्सेप्शन, ठीक है। और ये मैंने बना दिया, ठीक है, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन बना दिया। अब मैं इसको चेक एक्सेप्शन बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन क्लास बनाया, ठीक है। अच्छा एक्सटेंस करना है भाई, एक्सटेंस कीवर्ड करना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पर फिर मैं स्ट्रिंग मैसेज दूंगा एक, ये आपको पता होना चाहिए guys, मैंने ऑलरेडी सेशन ले चुका हूँ कंस्ट्रक्टर का और इंस्टेंस वेरिएबल का, इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा हूँ इस क्लास के लिए। अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा यहाँ पर, यूजर नॉट फाउंड,
कंस्ट्रक्टर को पब्लिक बना हुआ तो भी आउटसाइड हम इसका बना सकते हैं। ठीक है, ये अब मैं थ्रो कर सकता हूँ यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी। ठीक है, इसमें बोल सकता हूँ मैं यहाँ से मान लीजिए ठीक है। अब मैं कहने का मतलब आप इसी तरह से बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ throwing the invalid input exception, ओके, तो आप ये वाला एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। जैसे मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, जैसे हैश मैप बनाया मैंने ठीक है। इसमें अपना ये मैं भाई जनरेट टाइप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जनरेट टाइप का मतलब होता है टाइप सेफ्टी, डिटेक्टिंग इनकम्पेटिबल टाइप एट कंपाइलेशन टाइम, डिटेक्टिंग इनकम्पेटिबल टाइप एट कंपाइलेशन टाइम। इसका मैं अलग से आपको अलग से लूँगा। अभी मैं यहाँ पर जस्ट वो दिखा रहा हूँ कि अपन कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम सिनेरियो टाइप का बता रहा हूँ मान लो। ठीक है, ये मैंने हैश मैप बनाया है। अब हैश मैप तो बन गया, अब मुझे यहाँ पर पुट करना है मैप डॉट पुट। ठीक है, अब कस्टमर नॉट फाउंड एक्सेप्शन जैसे मान लो यहाँ पर मैंने डाला अमित, साथ में उसका डाल दिया मैंने एड्रेस, सिटी डाल दी ग्वालियर, जैसे मान लो नोएडा। मल्टीपल यूजर है सपोज आपके पास यहाँ पर मैप के अंदर की वैल्यू में यूजर एंड देयर एड्रेस। ठीक है, ये मैं इसमें देखूंगा कि भाई मैप डॉट कंटेंट्स की। ठीक है, और मैंने यहाँ पर डाला राजा कंटेंट्स की, चलो हमें डाल दिया कैरेट ड्राइव इफ मैप डॉट कंटेंट्स की कर दिया अपन ने है। ठीक है, अब इट इज प्रेजेंट द मैप एल्स थ्रो इनवैलिड इनपुट नहीं करूँगा भाई, मैं थ्रो करूँगा कस्टमर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सॉरी यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अभी इसमें का इशू आ रहा है भाई, इसमें ये आ रहा है, देखो आप देखो क्या कह रहा है इसमें unable, because ध्यान रखना ये मेरा checked exception है। Why I am saying this is a checked, because my user not found exception class, this is my user defined class which is extending from exception class, and exception मतलब यहाँ पर जितने भी checked exception है वो सारे exception class से raise होंगे। So exception is a super class for all type of exception। इसमें रन टाइम एक्सेप्शन अलग हुए, जितने भी अनचेक्ड एक्सेप्शन है वो रन टाइम एक्सेप्शन से इनहेरिट हो रहे हैं, जितने भी चेक्ड एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट हो रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है भाई, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये आप मैसेज डालोगे वो यहाँ पर दिख जाएगा।
ये एक्सेप्शन, मतलब ये चेक एक्सेप्शन है। चेक एक्सेप्शन का क्या कंसेप्ट है? कंपाइलर क्या कहता है भाई, मस्ट बी हैंडल और स्पेसिफाई विद थ्रोस कीवर्ड। या तो भाई ये एक तरह का खतरनाक कुत्ता है इस मेथड के अंदर, डेंजर कुत्ता है इस मेथड के अंदर, ये वाला दिस इज द एरर बॉक्स स्टेटमेंट, ठीक है। बट दिस इज द डेंजर स्टेटमेंट, यू कैन से लाइक डेंजर डॉग। कंपाइलर कह रहा है कि भाई या तो इसको भाई हैंडल करो आप, वो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ये स्टेटमेंट को, और ना स्पेसिफाई करो विद थ्रोस कीवर्ड के थ्रू, ध्यान रखना। तो वो कह रहा है हैंडल करना है, तो मैं हैंडल करता हूँ, ऐड हैंडल ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर। या तो मेथड सिग्नेचर में डालो, तो आप इसकी मुझे ये जो पहले था मैं इसको हैंडल में डाल दूँ, क्या है यूजर नोट फाउंड एक्सेप्शन डाल दिया, चली गई थी। अब ये नोटिस बोर्ड पे डाल दिया आपने, क्या बिहेवियर ऑफ डॉग, भाई बहुत खतरनाक है, तो आपको लिखना पड़ेगा आपको नोटिस बोर्ड पे, सिर्फ अदरवाइज कंपाइलर एरर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी आप देखोगे प्रेजेंट इन द मैप आ जाएगा, देखो आप, सिंपल है, समझ में आ गया। इधर स्पेसिफाई कर दो और हैंडल विद ट्राई कैच नहीं कर रहे हो, तो देखो मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ इस हैंडल इसको, कंपाइलर क्या कह रहा है देखो, अनहैंडल एक्सेप्शन कह रहा है भाई, इसको एलाउ ही नहीं कर रहा रन टाइम, ठीक है। वो एक्शन में दे देता हूँ, सराउंडिंग ट्राई कैच डाल देता हूँ, ट्राई कैच हो गया, ठीक है। ये मैं चाहूँ यहाँ पर सर्वर नहीं करते हुए सिस्टम डॉट आउट डॉट कंटेंट डॉट कैस्केडेड मैसेज कर दूँगा, ठीक है। ये देखो आ गया, ठीक है, रन करते चलो, कोई इशू नहीं है अभी यहाँ पे। एरर बोर्न स्टेटमेंट था जो हमें, मतलब जो मेरे को करना था कि प्रेजेंट है कि नहीं है, ये तो मैंने कस्टमाइज़ कर रहा हूँ फिर अपने हिसाब से कि हम यूजर प्रेजेंट है मैप में कि नहीं है गिवन मैप के अंदर। इफ यूजर प्रेजेंट इन द गिवन मैप then we are displaying this see Amit is present in the map। if user is not present in the map, let's say मैंने डाला यहाँ पर अमित की जगह पे डालता हूँ राम, ठीक है, रामू डाल दिया, चलो लेट्स सी एक्सेप्ट आ गया, यहाँ पर नहीं, ये नहीं आना चाहिए, लेट्स सी उसी का आउटपुट देंगे ना, डाला ये मैसेज हमने यहाँ पे डाला, तो इसमें डाल सकते हैं यूजर इस प्रेजेंट डाल देता हूँ, अमित की जगह पे क्या डालेंगे, यूजर इज प्रेजेंट, यूजर इज नॉट प्रेजेंट, क्या कोई भी आप डाल दो इसमें भी, आप जैसे आपने डाला राकेश डाला, या user is present in the map। So guys, this is we have done the user defined exception, you can say checked exception, user defined unchecked exception created with the help of runtime exception class, throw keyword we are using to throw the exception explicitly। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लो मैंने ट्राई लिखा, ट्राई कैच फाइनली लिखा ना, मैं इसमें ना बता दी, इसमें ट्राई बनाऊंगा, जैसे मान लो मैंने एक ट्राई ब्लॉक डाला, एक कैच डाला यहाँ पर, फिर एक फाइनली डाला,
उसके बाद ध्यान रखना कैसे करें। स्टेटमेंट यहाँ है कुछ 1 2 1 2, फिर कुछ स्टेटमेंट यहाँ है 3 4 5, फिर ये हैंडल हो जाएगा अगर एरर यहाँ आ जाएंगे, फिर ये फाइनली ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूट। तो ध्यान रखना आपका अगर है ये नॉर्मल फ्लो होगा, नॉर्मल फ्लो में क्या होगा, ये नॉर्मल फ्लो है मान लो, नॉर्मल फ्लो में सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, सब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा फाइनल ब्लॉक के अंदर closing the connection, database connection, closing the file once you perform the read write operation on file. Okay. अब अगर मैं एबनॉर्मल फ्लो देखूं, जैसे एबनॉर्मल फ्लो अगर मैं बात करता हूँ, एबनॉर्मल फ्लो में क्या होगा, एबनॉर्मल फ्लो में ये होगा भाई, यहाँ पे अगर एरर यहाँ से आती है, ध्यान रखना, इफ एरर इज रेजिंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन, ये वाली लाइन से आती है, ये ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम इज टर्मिनेटिंग एबनॉर्मली। तो हो गया, यहाँ से हो गया। अब अगर सपोज एरर यहाँ से आती है, ट्राई ब्लॉक से मान लो इस वाली लाइन से आ रही, तो एबनॉर्मल कंफर्मेशन नहीं होगा भाई, तो यहाँ पर स्मूथ ही एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ये हैंडल होगा यहाँ पर, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, फिर यहाँ से ये आएगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाला, जैसे ये स्ट्रिंग इक्वल इक्वल टू नल डाल दिया सपोज, ठीक है, और इफ s1 डॉट लेंथ किया मैंने इक्वल टू s1 लेंथ लेस देन 5 है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, भाई समझना, मैं आपको एक कंडीशन समझा रहा हूँ भाई। अब यहाँ पर एक और मैंने बनाया मेथड, जैसे इंट सी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 6, 20 डिवाइड बाई 0, दो तरह की कंडीशन होगी भाई, ध्यान रखना।
अब अगर एक्सेप्शन मान लो यहाँ से आ गया पहले से, तो ये वाली लाइन तो चलेगी नहीं, ये तो क्लियर है भाई। देख लेते हैं हम। नहीं चल रही, देखो नल पॉइंट एक्सेप्शन आ गया, इस वजह से बाकी का नहीं चला। लेकिन चलो मैंने यहाँ से कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं ट्राई कैच के अंदर रख देता हूँ, ये वाली चीज़ को ट्राई कैच अर्थमेटिक एक्सेप्शन ले लो इसमें। मैं एक आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, इसमें कैन नॉट सेकेंड नंबर कैन नॉट बी यूज, सेकेंड तो ये कैच हो गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें फाइनली लगा देता हूँ। फाइनली किया, जैसे मैंने डाला यहाँ पर ट्राई कैच फाइनली अर्थमेटिक फाइनली जाते थे, इसे ध्यान देगा। टी आई वी आई एस आई डिवीजन आई जीरो, ठीक है। अब मैंने ये तो कर दिया भाई, ये हो गया, ट्राई हो गया, कैच हो गया, फाइनली हो गया, ये हो गया। हमने सी गाइस यहाँ पर अगर एक्सेप्शन यहाँ से आता तो फाइनल ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा देना, लेकिन ये फाइनल ब्लॉक स्केच के इस ट्राई के साथ में, ये वाली ट्राई के साथ में, एक्सेप्शन तो यहीं से आ रहा है, पहले ही वाली लाइन से आ रहा है। देखो आप नहीं चला, एक्सेप्शन हुआ है, ऑटोमेशन पहले से हो गया, मैंने लिख दिया, यहाँ आई नहीं, इस वाले में आई नहीं, पहले से ही टर्मिनेट हो गया पूरा मेरा, यहाँ से बाहर चला गया, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर मेरा एक्सेप्शन यहाँ से आता है तो वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक्सेप्शन यहाँ से आया तो ये कैच में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ऊपर से आया एक्सेप्शन जो हैंडल नहीं हो रहा है, तो फाइनली ब्लॉक चलेगा, वो यहाँ आएगी नहीं, जाएगी नहीं, बाहर से ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो फाइनली ब्लॉक, तो ये जो एक्सेप्शन बाहर से आए। दूसरा अगर मैं चाहूँ तो सिस्टम एग्जिट कर दूँ तो फाइनली ब्लॉक में चलेगा, जैसे इसके बाहर मैंने डाल दिया यहाँ पर सिस्टम डॉट एग्जिट, सिस्टम डॉट एग्जिट, तो फाइनली ब्लॉक में चलेगा, जीरो कर दिया, सॉरी मैं यहाँ में डाल दिया, कैच में डाल देता हूँ फाइनल होने के बाद। ठीक है, अब देखो इस केस में आपका, ये इसको मैं इधर ले लेता हूँ, कहाँ पे गया? ये मैसेज तो आ जाए कम से कम।
क्या है ना, देखो यहाँ पे चलिए अपना एक्सेप्शन आया, यहाँ से रेज हुआ, सेकंड कैन नॉट वीडियो submitting here and block not. Yeah, got it. Okay, so guys, I think almost we have covered most of the concept, but of course I will try to find out some more interview question, and I will introduce in the next session. Thank you guys, thank you so much. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे मेरे को गाइस अच्छा लगेगा कुछ और नए कंसेप्ट बनाने में। थोड़ा like if you write something on the comment, it will be more helpful for me. Okay, so thank you guys, thank you, encourage करने के लिए